सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिसने ये मौका हम सबको सुनने के लिए और इस समय प्रभु के वचन का ध्यान करने के लिए दिया है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भाइयों का भी जिन्होंने आज तक मुझको वचन के द्वारा वचन को सुनाने में मेरी अगुवाई की और मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मुझको इंकरेज किया। उन सारे भाई बहनों का मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस समय आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। इस दोपहर के समय में प्रभु तूने जो हमको मौका दिया, इस मौका के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और प्रभु कल से हमने जो सीरीज जो लीडरशिप क्वालिटी के स्किल्स है उसके बारे में हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं। उसको सीखने के लिए हमें मजबूती दीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम तेरी महिमा करने वाले बन सके और लोगों के सामने हम यीशु मसीह की गवाही देने वाले बन सके। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते सुनो और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर पिता का फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस समय कल हमने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से आदम को जन्म दिया था कि हम लोग जब 2:7 में उत्पत्ति के 2:7 में देखा कि परमेश्वर ने आदम को उस मिट्टी से उसने सृष्टि करके उसमें उसके जीवन का सांस को फूंक के उसको उसने जिंदा किया। कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, प्राइड का शब्द हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए हमको कभी भी नम्र कि हम तो एक मिट्टी है और मिट्टी में पैदा हुए मिट्टी में चले जाएंगे। और इसके लिए हमारे जीवन में हमें कभी भी इस बात को ध्यान में रखना है कि नम्रता और पेशेंस हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हो सके। क्योंकि मसीह जीवन में अगर ये चीज़ें नहीं है तो हम मसीह कहलाने के लिए योग्य भी नहीं हो सकते। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಮ್ಮದು ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಗರ್ವ ಬರದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ದೇವರದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರದ ಗರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಉಸಿರು ಜೊತೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀಚವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದು ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು। ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದಾಮದ ಜನ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗಿತ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಾತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26 ಮತ್ತು 27ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರು ಈ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ। ಹೌದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿದ ಒಂದು ನಮಗೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇದೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಅದ್ರಾಗ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಅವ್ರದ್ದು ಅಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಳುದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಎದ್ದು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ। ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಾಗಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ। ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಜಂತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ। ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಚಲಿಸೋರು ಆಗಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಭಾಳ
ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ತಂದೆದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರ, ಯಾರು ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರಿಸ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೋಹಾನ 1:12 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪರುಸಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅವನು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಓನರ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ನಾನು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ತೇನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಓನರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳ್ಕೊಂಡದೆ ನಾವು ಈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸೋರು ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಮಾತು ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ವಾಚ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅವನು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅವನು ಕಾಯುವುದು ಕೆಲಸ ಸರಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದೂತಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಸೈತಾನ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೆ ಆ ಏದೇನ್ ತೋಟಗೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾತಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ದೇವರು 2:19 ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಮತ್ತು 20 ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2:18 ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಎಲುಬು ತೆಗೆದು ಅದರದಿಂದ ಅವನು ಅಂದರೆ ಹವಳಿಗೆ ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹವಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹವಳಿಗೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದಂಪತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪತ್ನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಹಾಯಕಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜರ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯ ಮಾಡೋರಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ಮಾತು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-6 ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ यहाँ तक हमने देखा कि कैसे आदम ने अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष को
और धीरे धीरे पाता गया। सबसे पहले उसका जन्म हुआ जो मिट्टी से था, लेकिन उसके अंदर जो सांस थी वो प्रभु के आत्मा से भरी सांस थी, और वही आत्मा की सांस या हमारे विवेक में परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है। और दूसरी बात हमने देखा है कि उत्पत्ति के 1:26 और 27 में परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। सो इस अधिकार को संभालने की हम में ताकत होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी जब भी कोई काम करता था, जब भी कोई बात करता था, तो वो अधिकार से करता था, वो शास्त्री फरीसाई के समान नहीं करता था। और परमेश्वर ने भी हमको उसके बच्चे होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसको अंगीकार किया उसको परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया। इस बात को हम लोग यूहन्ना 1:12 में हम लोग ने देखते हैं। और बाद में 2:19 में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको प्राणियों के नाम बताने के लिए, उससे प्राणियों को नाम रखने के लिए उसको एक जिम्मेदारी दी। और आदम ने सब प्राणियों को नाम दिया, और आज तक वही प्राणी के नाम आज तक चलते आ रहे हैं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और आज हम लोग देखेंगे कि वचन 3 अध्याय और उसमें 3 से 6 में क्या होता है। यहाँ में परमेश्वर के बनाए सब जंतुओं में से सांप सबसे चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर तुमसे कहा कि तुम इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल मत खाना। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक सांप जो आके वो आदम से बात नहीं करता, बल्कि वो हवा से बात करता है। जो एक अधिकारी व्यक्ति है, जो सब कुछ जानता है और जो सब कुछ उसको उस सीक्रेट को मानता था, उसने उस व्यक्ति के पास न जाते हुए जो व्यक्ति आधा जानता है या उसके पत्नी को उसने क्या किया कि उस पत्नी के पास गया। क्योंकि हम लोग घर में भी देखते हैं कि जब कोई बेटा या बेटी कोई भी काम हो तो सबसे पहले वो अपने माँ के पास जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं पिता मुझको डांट ना दे। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सांप भी उसने देखा कि औरत जात जो है एक बहुत ही ममता भरी एक बात होती है, और वो बहुत ही बात को समझती है, और उसी तरह से वो बहुत ही जल्दी पिघल जाती है। और इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये चालाक जो सांप के रूप में शैतान था, वो वहाँ पे जाके वो क्या कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा था। तो यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी में हमको बात करने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो उल्टी तरह से बात कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से प्रभु के बातों को उल्टा बता रहा है। क्योंकि जब हम लोग वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने 2:16 में परमेश्वर मनुष्य से कहता है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो। यहाँ पे परमेश्वर पहले खाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे शैतान पहले ना खाने की बात करता है। तो शैतान जब भी बात करता है तो परमेश्वर के उल्टा बात करता है। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसे आगे क्या कहा कि 2:16 में हम लोग देखते हैं कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन 17 में कहता है कि लेकिन या भले या बुरे या ज्ञान के पेड़ को, उसके फल को तुम कभी न खाना, क्योंकि उस दिन तुम इसमें से खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। तो दूसरी बात, परमेश्वर उनको पहले क्या खाना चाहिए और दूसरा वो बताता है कि उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए। और उसी तरह से यहाँ पे शैतान की बातों में हम लोग जब देखते हैं तो शैतान हमेशा हमको फंसाने वाली बातों से, हमको कुछ बातों को वो सच को, कुछ बातों को झूठ को मिला के एक ऐसे स्टेटमेंट को तैयार करता है जिसके वजह से मनुष्य का एक विश्वास क्या होता है कि यही बात सच होगी। और इस तरह से यहाँ पे उसका झूठापन हम लोग वचन 1 में देखते हैं। और उसके लिए हम एज ए लीडर्स हमको हर एक बात के ऊपर ध्यान रखते हुए बातों को समझने की बहुत ही ज़रूरत है। और तब स्त्री ने उत्तर दिया, हम बगीचे के वृक्षों के फलों को खा सकते हैं। यहाँ पे स्त्री ने जो उससे कहा, परमेश्वर ने कहा था उसको कहा। इसका मतलब स्त्री भी जानती थी कि परमेश्वर की आज्ञा क्या थी, लेकिन बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि ना तुम उस फल को खाना, क्योंकि यहाँ तक सही है, और बाद में न ही उसको छूना। ये बात परमेश्वर ने वहाँ पे नहीं कही। यहाँ पे कहीं भी परमेश्वर ने उसे सिर्फ क्या कहा है कि खाना मत,
छूने की बात को यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बात यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं हमको दी है वो जैसे के वैसे हमको पालन करना है। जबकि उसने नहीं खाना का मतलब उसको छूना भी नहीं, उसको देखना भी नहीं और उसको समझने की कोशिश भी नहीं करना, या उसके विचारों को भी अपने मन में नहीं लाना। यही होती है आज्ञा का पालन करने का एक विचार। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उस फल को खाना और ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हवा भी यहाँ पे झूठ बोल रही, क्योंकि आदम जो शैतान था उसने भी वहाँ पे झूठ बोला। लेकिन यहाँ पे शैतान आगे बढ़ के क्या बोलता है कि सांप ने स्त्री से कहा, निश्चय तुम न मरोगे। अभी ये मरने का बात क्या है, ना आदम जानता था ना हवा जानती थी। ये मरना क्या है, अभी मरना उनके गलती के वजह से ये मृत्यु का प्रवेश इस दुनिया में आया था। और इसी मृत्यु के वजह से आज हम सब लोग, इसी पाप की वजह से आज आप सब लोग मरते जा रहे हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि निश्चय तुम नहीं मरोगे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उनसे जो कहा था वहाँ पे आत्मिक रीति का मरण, या क्योंकि हम लोग आगे चल के जब देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको, जब उन्होंने फल खाया तो उनसे क्या किया कि अपने आप से और जो जगह उनको दी थी उस जगह से और जो बातों का अधिकार दिया था उस अधिकार से सबसे उनको अलग किया। यानी परमेश्वर के संग और साथ में रहने का अधिकार वो खो चुके थे। और यहाँ पे परमेश्वर का साथ में अगर हम संगति नहीं करते तो हमारा जीना भी एक मरने के समान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमारे जीवन में परमेश्वर की संगति में हमारा जीवन है, परमेश्वर के वचन में हमारा जीवन है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना में हमारा जीवन है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि शैतान कहता है कि तुम शरीर से नहीं मरोगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम शैतान की बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए हमें जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करना है। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ये जानते हैं कि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और यहाँ पे इन सीक्रेट को परमेश्वर ने कहीं भी नहीं बताया था, जबकि शैतान जानता था, क्योंकि शैतान एक लूसीफर कहने और नाम से कहलाने वाला एक स्वर्गदूत था। और वो परमेश्वर की कुछ योजनाओं को उसने देखा था और वो जानता था कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। और उसी में से कुछ थॉट्स उसके पास रहने के वजह से वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो कहता है कि इसमें जब तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम मरोगे नहीं लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे जिस फल को परमेश्वर ने बनाया, क्या वो फल खा के परमेश्वर हुआ था? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये फल जो था ये मनुष्य के लिए ही था। लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर शायद ये फल उनको देता था जब इन सारी परीक्षाओं में अगर वो पास होते, अगर वो शैतान की परीक्षाओं में पास होते, जैसे यीशु मसीह उस शैतान की परीक्षाओं में पास हुआ, शैतान के सवालों में पास हुआ, उसी तरह से अगर आदम और हवा पास हो जाते या वो सफल हो जाते तो शायद परमेश्वर उनको वो जीवन का फल उनको जरूर देता। और ये जीवन का फल कौन है? ये है यीशु मसीह। और यीशु मसीह उनके अगर जीवन में आते तो वो लोग सचमुच में प्रभु के बच्चे कहलाते थे। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने जो भी गलतियां की, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसने परमेश्वर के समान होने का अधिकार को प्राप्त करने के लिए हवा ने कोशिश किया। और जब स्त्री ने उस पेड़ के फल की ओर देखा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखने की शक्ति बहुत ही पावरफुल है। स्पेशली जवान बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो बच्चे लोग हैं वो भी, जब हम किसी चीज को सुपरमार्केट में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज बहुत ही प्यारी है, ये चीज अगर मुझको मिलेगी तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। और बहुत से बार हम किसी अच्छे ऊपर के प्रोडक्ट को देखे, अंदर के प्रोडक्ट को हम देखना नहीं चाहते, लेकिन बाहर के उस बॉल को देखते हैं, अंदर क्या है वो आइसक्रीम या चॉकलेट, उसको हम लोग नहीं देखते। वो दिखने वाले बड़े चीज के लिए हम ज्यादा पैसा खर्चा करके अंदर में जो बहुत ही कम वैल्यू का जो वस्तु है उसको हम लोग खरीदते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखने की शक्ति बहुत ही
खतरनाक है और देखने की शक्ति बहुत ही अच्छी है। इसके लिए अगर आप प्रभु का वचन देखते जाओगे, अपने मन में अपने विश्वास की आंखों से देखोगे तो आप बलशाली होगे। लेकिन आप जब व्यभिचार से देखोगे तो ये व्यभिचार क्या करेगा, आपके शरीर में कार्य करके आपके जीवन को वो नाश करेगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या करना चाहिए कि इस भरे बुरे ज्ञान को समझने के लिए हमको यीशु मसीह को अपनाना चाहिए। और आगे बढ़ के हम क्या देखते हैं कि उसने देखा और खाने के लिए अच्छा है और देखने में सुंदर है, बुद्धि देने वाला है बोल के उसने सोचा और उसने पेड़ को फलों में से एक लेकर खाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप का शुरू कैसे होता है? सबसे पहले हवा ने उसको देखा तो हवा ने देखते कहा, वाह, देखने के लिए कितना सुंदर है, देखने के लिए इतना सुंदर है तो खाने के लिए कितना अच्छा होगा। और जब उसने छुआ, ओ इतना स्मूथ है, तो स्मूथ है रहने के बाद मेरे दांतों में कितने वो स्मूथ से वो चला जाएगा। इस बात को वो सोचने लगी और धीरे धीरे उसने उस पाप को कर डाला। और उसी तरह से जब तक कोई चोर किसी चीज को देखता नहीं, जब तक वो सोचता नहीं, जब उसका मन तैयार हो जाता है तभी वो चोरी करता है। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस हवा ने भी यहाँ पे क्या गलती की कि उसने देखा, उसको स्पर्श किया और फिर बाद में उसने खाने को शुरू किया और उसने अपने पति को भी दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि उसके पति ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया था, जिस आज्ञा को उसने दिया था उस आज्ञा का उसने पालन नहीं किया था। जिस फल को ना खाने की आज्ञा दी थी उसने अपने पत्नी को उस तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं दी जिस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था। उस सांप से उसने नहीं कहा कि क्यों तू मेरे पत्नी से ऐसे बात कर रहा है, क्यों तू मेरे पत्नी को तू झूठी बातों से बहका रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आदम को भी वही चाहता था और इसके लिए वो अपने पत्नी के साथ में उसने क्या किया कि उस फल को खाया। और 7 वचन में देखते हैं कि तब उन्होंने दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें महसूस हुआ कि वे नंगे हैं और उन्होंने स्वयं को ढकने के लिए अंजीर की पत्तियों जोड़कर अपने कपड़े को बनाए और नंगेपन को ढक दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि शैतान ने जो उनसे कहा था उसके सब ही उल्टा हो गया। शैतान ने कहा था कि तुम परमेश्वर के समान बनोगे, लेकिन क्या हुआ तो उनको पता चला अरे हम तो नंगे हैं। तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो हमारे शरीर पे नंगापन आएगा, हमारे जीवन में भिखारीपन आएगा, हमारे जीवन में कोई भी आशीर्वाद नहीं रहेगा, हमारा पूरा जीवन पूरा खाली जीवन रहेगा, क्योंकि हमारे इस अनाज्ञाकारी के कारण हमें इस पाप को हमको झेलना पड़ता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में क्या सचमुच हम लोग प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं? एक सच्चे एक लीडर हो के हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक हमने देखा है कि एक लीडर को कैसे सावधान रहना चाहिए था, कैसे वो सांप को रोकना चाहिए था, कैसे हवा को भी जानना चाहिए था कि जैसे शैतान ने उससे कहा कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग वचन में 1 और 26 और 27 में ऑलरेडी परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया था, जबकि वो परमेश्वर के जैसे थे, लेकिन फिर भी शैतान के बातों में वो फंस गए। और इसके लिए एक लीडर को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और एक लीडर को हमेशा देखभाल करने के काम में बहुत ही उसको अलर्ट रहना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आदम ने उस बात को नहीं माना और बाद में उन्होंने अपने तरीके से जीना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि कुछ अंजीर के पत्तों को लेके उसने जोड़कर उनके कपड़े बनाए, जबकि उन्होंने पाप किया था और वो अपनी इच्छा से अपने आप को ढांपना चाहते थे। उसी तरह से यहूदा इस्करियोत ने भी पाप किया था। उसने क्या किया कि वो
पर यीशु मसीह को बेचकर उसका पैसा तो लिया था, लेकिन उसको बाद में पछतावा हो गया और वो अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया कि वो पैसा लेके जाके वो याजक और वो लेवियों के पास जाके उसने कहा कि मैंने पाप किया, एक निरपराध आदमी को फंसाया, इसके लिए मुझको पश्चाताप है, पछतावा है, इसको ले लो। लेकिन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो बाद में जाके उसने आत्महत्या की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा है, क्योंकि इन्होंने खुद ही गलती की और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो ढकना चाहते थे, अपने पापों को छुपाना चाहते थे। किस चीज से? अंजीर के पेड़ों से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। अगर यहाँ पे हम लोग आगे चल के देखेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर उस समय आके उनसे क्या क्या कहता। लेकिन मैं इस भाग में इस बात को मैं नहीं बताऊंगा, अगले भाग में मैं बातों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आज लीडरशिप क्वालिटी में हम लोग सांप से भी क्या सीखे कि किस तरह से बात को हमको समझना चाहिए, क्या सच है और क्या झूठ है। परमेश्वर ने क्या कहा था और सांप ने क्या कहा था। परमेश्वर सीधे कहता है, सांप उल्टे बात करता है। और परमेश्वर हमें सच्चाई बताता है, आत्मिकता के बारे में बताता है, शैतान दुनिया के बारे में बताता है। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें अपने काम के ऊपर बहुत ही ध्यान और मन लगा के अपने कामों को करना है, कामों में सुधरना है और आगे बढ़ना है। और आज्ञाकारिता हमको बनना चाहिए, क्योंकि हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में जो शाप आगे आने वाले हैं, अगले वचन में आने वाले हैं, उस वचन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अभी तक उनको संभाला था, अभी तक उनको बचाया था, अभी तक उनको काम दिया था, अभी तक उनके संगति में था। और वही परमेश्वर कैसे उनको काम से निकालता है, उस एदेन के बाग से निकालता है और अपने संगति से निकालता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सच्चे लीडर की पहचान क्या है? वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला बन सके, परमेश्वर की आज्ञा को जानने वाला बन सके, परमेश्वर की आज्ञा को समझने वाला बन सके, परमेश्वर की इच्छा जानना, परमेश्वर के मन में क्या है ये समझना है। आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ। ಇವತ್ತು ನಾ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು। ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ದಯೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಯ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಿಂದ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ನಡೆಸು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಶುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಕರುಣಿಸು, ಕಾಪಾಡು। ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸು।